Okay, picture this. It's early morning, you're half asleep, eyes barely open. You pull back the curtains, and suddenly you're staring at a living postcard. Mountains in every direction, their peaks kissed by the softest golden light. The sky pale and sleepy, blushing just a little. And below that, a lake so still it doesn't even ripple, like it's holding its breath with you. I didn't plan to fall in love with this place. Honestly, I was just here to tick it off the list. Dal Lake, check. But the second I stepped onto the Shikara, something shifted. It wasn't just a boat ride. It felt like time slowed down, like Kashmir was letting me in on one of its secrets. It did feel like a Bollywood dream sequence, minus the dramatic wind and slow motion. Okay, maybe just a little bit dramatic wind. Speaking of which, I did almost lose my camera to the lake. Turns out, filming while trying to balance on a wooden boat, not my core skill. But what really got me wasn't the views. Though, yes, they're insane, it was the people, like the boatman, who out of nowhere started talking about life like he was a philosopher, distinguished as a shikara guide. He said something like, "The lake teaches you patience, it only shows itself when you're still." And I just sat there quiet, holding that sentence like it was gold. Then somehow, don't ask me how, I ended up window shopping on the waters. Yes, you heard that right, because in Kashmir, even the shops float. From saffron and silver jewelry to paper machine boxes, everything comes to you, drifting by like magic. It's like the entire lake is alive, like a slow moving festival of color and calm. And somewhere between the stillness and the chaos of it all, I forgot I was filming. I just felt. So, no, this isn't just a vlog. This is a little slice of magic from the heart of Kashmir. This is Dal Lake, and today you're coming with me. Let's go. Hi guys, welcome back to my channel. So अभी मैं सिंथन टॉप से just वापस आई हूँ and we're now on our way for the Shikara ride, the most awaited Shikara ride, because I have been wanting to do it forever. Like, I've watched it on Pinterest and I knew I wanted to do it. Like, it looked so magical, so nice. तो करना तो था ही. बहुत दिनों के बाद, बहुत प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली आज हो रहा है and I'm so excited about it. Although my outfit is not on point, I wanted to wear salwar suit. That didn't happen, but you know what? Who cares? The ride is important. And like you can see, this is the afternoon time. तो काफ़ी रश है यहाँ पे बिकॉज़ सबसे ज़्यादा लोग आफ्टरनून में ही आते हैं, इवनिंग में ही आते हैं क्योंकि सनसेट एन्जॉय करना होता है। बट बिफोर एन्जॉयिंग द शिकारा राइड वी नीड टू बार्गेन बिकॉज़ ये हम बता रहे हैं कि ₹4000 का boat ride है, which is obviously a lot. But one thing I've realized here is that अगर आप कम पे करते हो तो वो आपको जगह भी कम दिखाते हैं. So you have to be very careful about that as well कि हाँ उन्होंने 4000 बोला तो 4000 में से अगर आप 3000 दे रहे हो तो वो बहुत सारी जगह पे घुमाएंगे और बहुत देर घुमाते हैं. बट फॉर 2000 और 1000 वो 3-4 स्पॉट्स ही दिखाते हैं तो दे आर वेरी स्मार्ट लाइक दैट. तो ज़्यादा बार्गेन नहीं करना चाहिए ऑल्दो हमने काफ़ी ज़्यादा बार्गेन किया है. लेट यू नो कितना बार्गेन किया है. पहले बोट तो मिल जाए. आई एक्चुअली हैड प्लान कि मैं सलवार सूट पहन के आऊँगी और कल करेंगे हम शिकारा बट कल हो पाएगा कि नहीं वी हैव नो आइडिया सो विच इज़ वाई वी डूइंग इट नाउ ऑल्दो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ऐसी हो रखी है बट स्टिल विल डू द शिकारा बिकॉज द मोमेंट मैटर्स. व्हाइट शिकार आपके लिए ठीक है फोटो अच्छी आएगी वो. फोटो अच्छा आप क्या बोल रही है ड्राइवर भाई 4 पॉइंट है इनका गोल्डन लेक फ्लोटिंग लैंड मीना बाजार और वेजिटेबल गार्डन दिखाओ या 4 पॉइंट है सब 5 चला. Finally doing the shikara ride. আস্তে আস্তে হ্যাঁ পানির মধ্যে পড়ে যাবে কিন্তু ফোন আস্তে. वीडियो बना इंस्टा को लाखों कमाओ लाखों जब बेटा फोटो बनाना है शटर्स वाला नहीं भैया. चलते चलते आ जाएगा बनाओ यादगारी चीजें. So pretty. I feel so happy.
got this boat for around 1500, which is I think a steal deal. Not sure. Let me know if it's too expensive. We got 4 points and yeah, that's it. And ये जो लेफ्ट साइड आए ना कौन सा इधर? हाँ. इसका नाम है गोल्डन डल लेक। अच्छा क्यों? शाम को 9 बजने के बाद पूरा लाइटिंग चालू होता है। हाउस बोट का 3 साइड का हाउस। वो ओह पानी के ऊपर पड़ता है, पानी दिखता है गोल्डन। अच्छा, कस्टमर को मन नहीं करता है वापस जाने का। लाइट की वजह से पूरा गोल्डन हो जाता पूरा है। पूरा पूरा गोल्डन। अच्छा भैया, देखो लेफ्ट साइड टर्न मारो सीधा अकबर का फोर्ट है, छोटा पहाड़ दिखेगा। कौन सा? इधर अकबर का फोर्ट। अच्छा अच्छा ये जो पीछे घास है ना ये हाँ, कलर ये अच्छा फ्लोटिंग गार्डन भी बोलते हैं, लैंड भी बोलते हैं। फ्लोटिंग गार्डन। गार्डन अच्छा जब उसको घास की कटिंग होती है ना, हाँ जी, जब इसको घास की कटिंग होती है ना, हाँ उस टाइम दिखता है गार्डन। ओके। होते हैं ना, हाँ जी, उसके बाद जिले में 4 पेड़, चार 4 पेड़, कद्दू, खीरा, टमाटर। कद्दू, खीरा, टमाटर, वाटरमेलन। ये मीना बाजार है। अच्छा अगर आपको जाना है चलते हैं उधर जा सकते हैं। 5-10 मिनट के अच्छा This is the market that you reach after boating for a while. This is called Meena Bazaar. ये सब कितने का है? Shikaras. You can take other things also. So I'm done with my share of shopping. नहीं भैया, देख लिया मैंने. And that's it. Let's go back now. मैं शॉपिंग करने जाऊँ कुछ लेके ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. मैं ले आई. ठीक है. So you come to Dal Lake, you can come here. Look at the kurtis, it's so pretty. इतना प्यारे प्यारे हैं, बहुत सारा कलेक्शन है इनके पास, ऑथेंटिक कलेक्शन. शॉपिंग डन. कुर्तियाँ बहुत एक्सपेंसिव थी तो मैंने ली नहीं कि कपड़ों के लिए जगह. बाय मिशेल. द शिकारा हैज फाइनली हैपेंड क्योंकि कल तो शिकारा उलट गई थी यहाँ पे, तो काफ़ी डर लग गया था कि नहीं हो पाएगा, बट हो गया. आई डोंट नो इस फीलिंग को क्या बोलते हैं. मैंने बहुत सारा बोटिंग किया है बहुत जगहों पे, बट यहाँ का थोड़ा अलग है वाइब. आई मीन कश्मीर इन टोटल इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब. माउंटेन से लेके नदी से लेके सब कुछ एकदम अलग है यहाँ पे. मे बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अ बिट आउट ऑफ रीच सॉर्ट ऑफ, सब नहीं आ पाते हैं. मे बी बिकॉज ऑफ दैट, आई डोंट नो, बट देयर समथिंग अबाउट इट, लाइक इट्स जस्ट डिफरेंट. आप जब तक यहाँ नहीं आओगे तब तक आपको पता नहीं होगा कि कैसी फीलिंग है और मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. जब आप आओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार अलग तो है. जितना लेक्स चले जाओ, जितने माउंटेन्स चले जाओ, नथिंग लाइक इट. द होल एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस. मतलब आपकी रूह तक पहुँचती है वो एक्सपीरियंस, वो वैसा है. एंड जितना मैंने वीडियोज़ में देखा, जितना मैंने जहाँ पे भी देखा, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट बट बेटर. आई मीन इट्स दैट फीलिंग, द एक्सेप्टेंस, द वाइब, लाइक जो आप वहाँ जाके फील करते हो. इस वीडियो में मैं जितना भी बोल लूँ कि बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, आप वो फील नहीं कर पाओगे. या यू कैन सी इट एंड यू कैन से ओ प्रिटी, बट दैट फीलिंग you'll get only when you go there.
तो वे फाइनली डन विद द शिकारा। पता नहीं मुझे कि हमें 4 स्पॉट या 5 स्पॉट दिखाए कि नहीं, जो भी था, बट बहुत काम था, तो इसीलिए नो कंप्लेंट्स। जो भी था, जैसा भी था, अच्छा था, बस। सो वी आर डन एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो हैव समथिंग, क्योंकि सिंथन टॉप से आने के बाद वी डिड नॉट ईट एनीथिंग, वी लिटरली जम्प्ड इनटू द शिकारा, but now we're really really hungry, so let's go eat something. Can't get over the sunset, it's so pretty. We're at Nathu Sweets and we're having paneer jalebi and cream roll. तो काफ़ी देर हम ट्रैफिक में बैठे रहे। लिटरली वी आर हियर एट अ डल लेक के पास का ही रेस्टोरेंट, बट इतना ट्रैफिक था कि वी हैड टू सिट इन द ट्रैफिक फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। तो पनीर जलेबी और क्रीम रोल तो हज़म हो गए, बट वी आर नॉट गोइंग टू द होटल बैक बिकॉज़ वी वांट टू हैव सम बिरयानी, जो अगर यहाँ नहीं खाया तो कहाँ अच्छी बिरयानी खाएँगे, राइट? तो हमारे भैया ने हमें एक बहुत अच्छी-सी जगह रिकमेंड करी, जो कि ये है, एंड वी आर गोइंग हियर टू हैव सम बिरयानी, लेट्स गो। काफ़ी हंग्री थे हम लोग, तो इसीलिए हमने फटाफट बस सीख कबाब ऑर्डर किया, चिकन सीख कबाब एंड मटन बिरयानी। डिड नॉट इवन थिंक ट्वाइस कि बस टूट पड़ो, क्योंकि लंच भी नहीं करा ना हमने। वी जस्ट हैड दिस चाय एंड स्नैक्स, जो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो हमने लंच करा ही नहीं, ब्रेकफास्ट के बाद सीधा डिनर कर रहे हैं प्रॉपर। बहुत भूख लगी थी, बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9:30 एंड वी आर गोइंग बैक। इतनी रात तक हम कश्मीर में बाहर थे नहीं, और ना ही इतने डार्क तक कभी बाहर थे, तो काफ़ी ठंडा हो जाता है यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक, नॉट द वेदर ठंडा, बट लाइक द गाड़ी वाला ठंडा कि लोग कम हो जाते हैं। So we're back at the hotel and it was one hell of a day, but now we're tired, so let's just call it a day. Bye guys. That's it for today, guys. This is my second last day in Kashmir, so I'm kind of sad, but I hope you're liking my Kashmir diaries, and if you are, then do like, share and subscribe, and I'll see you in the next one. Bye bye.